Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन टू मिडेवियल वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग उसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. In this video we are going to study about economy. The Delhi Sultanate as well as the Mughal Empire was based on the surplus of agricultural produce of the peasants that was extracted in the form of revenue. In the Mughal Empire, particularly in the reign of Akbar, far-reaching changes were made in the system of revenue collection. Land was measured and land revenue was fixed according to the exact area of land. Fertility of the land was also taken into account. The cash values of the state share of the produce was then calculated according to prevailing market prices and the revenue was fixed in cash terms accordingly. The state encouraged payment of revenue in cash. This was a period of commercialization of agriculture and the state encouraged cash crop production. The state also took a lot of interest in the extension of cultivation into zones which were in hitherto uncultivated or forest areas. It gave various incentives to pioneer agricultures. The state also advanced to peasants loans as well as revenue relief in types of crop failure. तो जो दिल्ली सुल्तान थे और जो मुगल एम्पायर थे, ठीक है, वो किस पे बेस्ड थे? तो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता था उसके सरप्लस प्रोड्यूस पे, किसान के जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे उन पे बेस्ड थे। साथ में वो क्या करते थे कि उनसे वो इस चीज को वो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। मुगल एम्पायर में पार्टिकुलरली अकबर के साम्राज्य में क्या होता था कि ये जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया, एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम बनाया। जो जमीन था उसको मापा जाता था और जो लैंड रेवेन्यू उसको उस जमीन के हिसाब से फिक्स किया जाता था और जमीन कितना उपजाऊ है ये भी देखा जाता था। और जो कैश वैल्यू स्टेट का वो भी शेयर क्या करता था, प्रोड्यूस को शेयर करता था, उसको कैलकुलेट किया जाता था कि मार्केट में इस कैश का कितना प्राइस मिलेगा और रेवेन्यू को कैश के टर्म में फिक्स किया जाता था। ये जो स्टेट है वो पेमेंट को भी इंकरेज करता था कि जो रेवेन्यू है आप उसको कैश के फॉर्म में पे करें। और इस पीरियड को बोला गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स एग्रीकल्चर का वो कमर्शियलाइज करने लगे। स्टेट था वो कैश क्रॉप प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देने लगा और जो स्टेट वो बहुत सारे इंटरेस्ट लेने लगे कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने में कि वो जोन्स में लोग कल्टीवेशन को एक्सटेंशन करें। और जो अनकल्टिवेटेड जो फॉरेस्ट है एरियाज है उनको वो क्या करने लगे कि वो भी लोग उनको कल्टीवेट करें उस एरियाज को। इससे क्या हो कि इससे बहुत सारे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो आगे आए और उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको एडवांस बनाया, पीजेंट्स को लोन प्रदान किया, जब रेवेन्यू से भी रिलीफ दिया। जब कभी क्रॉप फेल हो जाता था तो ये नहीं कि उनको रेवेन्यू भरना ही भरना है, उससे उनको रिलीफ दे दिया जाता था और साथ में किसानों को लोन भी दिया जाता था। Trade and commerce, which had declined greatly following the period of the Guptas, saw a revival during this time. Urban centers flourished after a considerable period of decline. Inland trade increased in the 13th and 14th centuries as a result of this new urbanization. A vast network of road connecting these urban centers came up which also facilitated trade. Cities like Delhi, Agra, Lahore, Multan, Dhaka, uh, Ahmedabad, Surat, and Bombay rose in importance. The merchandise from Punjab was sent to markets in West and Central Asia. Political stability and relative peace established by the Mughals made it possible to travel with considerable ease among the cities of the empire. Coastal trade also flourished. There were a large number of trading classes and commercial practices were of high standard and integrity. The states
Boras, and Buddhists were engaged in long distance trade, while Paris and Banix dealt in local and retail trade. The serafs or shops were money changers who issued hundis or bills of exchange. The hundi was a letter of credit that could be paid at a later date at the designated place. This facilitated the movement of goods from one part of the country to another as it made the transaction of money over long distance remarkably easy. तो जो ये इकोनॉमी हम लोग देख रहे हैं का, तो ये जो ट्रेड और जो कॉमर्स था उसका डिक्लाइन हो चुका था तब तो गुप्ताज की पीरियड में, और फिर इस मेडिवल वर्ल्ड में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसका थोड़ा सा पुनरुद्धार हुआ। ट्रेड और कॉमर्स आगे बढ़ चला, जो अर्बन सेंटर्स थे वो कंसिडरेबली डिक्लाइन हो चुके थे, लेकिन जो इनलैंड ट्रेड था वो 13th और 14th सेंचुरी में इंक्रीज हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप नए नए शहरीकरण हुए, और जो वास्ट नेटवर्क है रोड का वो कनेक्ट कर रहे थे नए नए अर्बन सेंटर्स को, जिससे जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट हुए। जैसे कि सिटीज है कुछ दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, ढाका, अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे। इनका अपना महत्व बन गया क्योंकि इन सिटीज जो थे वो सेंटर पॉइंट बन गया था ट्रेड करने का। इनका अच्छे से अर्बनाइजेशन हो चुका था, शहरीकरण हो चुका था। ये जो पंजाब के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में अपने सामान को वो भेजते थे, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था और पीस भी रिलेटिवली जो पीस था वो भी स्टेबल हो चुका था मुगल्स में। और इसकी वजह से जब शांति जब चारों ओर बढ़ती गई और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, तो जो अ, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रैवल्स वो आसान हो गए, संभव हो गए, और लोग दूसरे राज्यों में भी, दूसरे साम्राज्य में भी आने जाने लगे। जो कोस्टल ट्रेड था वो भी फ्लरिश हुआ। बहुत सारे जो ट्रेडिंग क्लास और जो कमर्शियल प्रैक्टिस करने वाले लोग अब हाई स्टैंडर्ड के साथ जी रहे थे। ये जो सेठ और जो बोरास और जो मोदिस थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इंगेज थे, और जबकि जो ब्योपेरिस और बनिक्स थे ये लोकल और रिटेल ट्रेड करते थे। जो सरास और शॉप्स थे वो मनी चेंजर्स थे जो कि हुंडीज या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को इश्यू करते थे। ये हुंडी थे वो क्या करते थे, एक लेटर ऑफ क्रेडिट देते थे जिसमें आप बाद में भी आप जो डेट दिया उस पे आप पैसा पे कर सकते हो, लेकिन डेजिग्नेटेड प्लेस पे। ये जो फैसिलिटेशन था इसकी वजह से गुड्स का मूवमेंट हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और इससे मनी का ट्रांजैक्शन भी थोड़ा सा इजी हो गया लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है। कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। अब हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन कैसे थे उन लोगों का। In the sphere of religion and culture, the medieval period witnessed a great synthesis of traditions. The Bhakti movement and Sufism in the religious sphere are examples of this. The Bhakti movement, which stressed on oneness with God through personal devotion, came very close to the everyday lives of ordinary people. It stressed on love, purity, and devotion rather than rituals and sacrifices. It questioned the caste system and the authority of Brahmins. Bhakti saints like Ramananda, Kabir Ravidas, Mirabai, Guru Nanak, Tukaram, and Chaitanya Mahaprabhu had a deep impact on the minds of the common people, and this influence continues even today. In fact, some of these saints developed large following. For example, Guru Nanak had deep influence over the people of Punjab. His large following led him to found a new religion called Sikhism, whose followers are called Sikhs. तो ये जो रिलीजन और जो कल्चर है मेडिवल पीरियड का, उसमें बहुत सारे हम लोग देखें कि कैसा ट्रेडिशंस उसमें आए, किस प्रकार से परंपरा बनी। जो भक्ति मूवमेंट और जो सूफिज्म था वो एक रिलीजियस स्फेयर है, एग्जाम्पल है इस लाइफ का, ट्रेडिशनल लाइफ का। और ये जो भक्ति मूवमेंट है इसमें क्या स्ट्रेस दिया गया कि भगवान जो है वो एक होते हैं, और आप पर्सनली भगवान की भक्ति करें, और प्रतिदिन का जो जीवन है जो आम व्यक्ति है वो पर्सनली जाके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर ध्यान दिया गया कि आप प्यार करें, शुद्धता के साथ रहे, भक्ति करें, ना कि आप ज्यादा धार्मिक कृत्य करें और किसी चीज का बलिदान दें आप। इससे कास्ट सिस्टम जो था, जो ब्राह्मण का ऑथोरिटी था, उस पे सवाल खड़ा हो गया। भक्ति सेंस जैसे कि रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम, जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनका गहरा असर पड़ा आम लोगों के जीवन में, और इससे जो लोग हैं वो आज भी इनके विचारों से प्रभावित है। इनफैक्ट
ये जो सेंट्स थे उन्होंने अपने फॉलोइंग पावर को बढ़ा लिया था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो गुरु नानक थे उनका गहरा प्रभाव रहा है पंजाब के लोगों के ऊपर। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक नए धर्म का खोज किया, सिखिज्म। ठीक है, और उनके जो फॉलोअर्स है जो उनको मानने वाले उन्हें सिख बोला जाता है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे कि फिगर में गुरु नानक जी का फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। In a similar manner, the Sufi saints also stressed on devotion and love as the only way to realize the divine. They praised tolerance and compassion. They lived lives of austerity and shared the sorrows and anxieties of the common masses. As a result, their influence over the masses, both Hindus and Muslims, were very strong. There was also a lot of interaction between the Sufi and Bhakti saints, and exchange of philosophical idea took place. Both traditions, in fact, acted as a bridge between the two communities. सिमिलर मैनर में जो सुफिशियंस थे उन्होंने भी भक्ति पे जोर दिया, प्यार के ऊपर जोर दिया, और उन्होंने रियलाइज करवाया कि क्या आपका डिवाइन जो पावर है वो क्या है। उन्होंने टॉलरेंस और कॉम्पैशन के ऊपर भी जोड़ दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने जो लाइफ को है वो ऑस्टेरिटी के साथ जी सकते हो, उसमें दुख और जो भी ऐसी चीजें हैं उनको आप इस प्रकार से अ, अलग हो सकते हो। परिणाम स्वरूप उनका जो प्रभाव है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर बहुत ही गहरे तरीके से पड़ा, और वहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्शन हुए सूफी और भक्ति साइंस के बीच में, और उनके बीच का जो फिलोसफिकल आइडिया था वो भी एक्सचेंज हुआ। जो ट्रेडिशन था वो एक जो परंपरा था वो एक ब्रिज का काम किया दो कम्युनिटीज के बीच का। कौन कौन से कम्युनिटीज थे? वो सूफी सेंट्स और भक्ति सेंट्स, ये दो अलग अलग कम्युनिटी थे, और इनका जो ट्रेडिशन था वो एक पुल का काम किया इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। लैंग्वेज, लिटरेचर, art, architecture, music, and dance also bore out this trend of synthesis between different traditions. In the area of language and literature, classical languages like Persian and Sanskrit flourished, but the real remarkable development was in the growth of regional languages. तो जो भाषा था, जो साहित्य, कला या फिर कलात्मक चीजें, गाना, नृत्य, ये सब जो चीजें थी उससे अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग परंपरा का उजागर हुआ। भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है जैसे कि पर्शियन और संस्कृत वो भी फ्लरिश कर रहे थे, लेकिन जो रियल रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ है वो जो क्षेत्रीय भाषा था जब उसका ग्रोथ हुआ तब हुआ। ठीक है, अभी भी क्षेत्रीय भाषा है जो उसका अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अलग महत्व होता है। आप भले ही कितना इंग्लिश जान लो, भले ही आप कोई भी ऐसा लैंग्वेज जान लो जो रीजनल ना हो, लेकिन जो आपका रीजनल खुद का लैंग्वेज है उसका खुद का एक अलग महत्व होता है। अंडर द मुगल्स पेंटिंग्स was organized in the royal karkhanas, and painters were on government payroll. The Mughal school of painting represented a complete assimilation of the Persian and Indian styles. This, to some extent, was a result of the fact that the artists of this school brought with them elements of the various traditions to which they belonged, like Rajputana, Gujarat, Malwa, etc. Some famous painters were Daswan, Basavan, Mukund, and Kesav. The supervision of the Persian masters like Abdul Samad and Sayyid Ali brought in an element of Persian style as well. Manuscript illustration was another hallmark of Mughal painting. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुगल्स थे उनका जो पेंटिंग्स था वो एक रॉयल कारखानास में बनाया जाता था, और जो पेंटर्स थे वो गवर्नमेंट पेरोल पे पेंटिंग आके करते थे। जो मुगल स्कूल का जो पेंटिंग था वो कंप्लीट पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता था, और कुछ हद तक इसके परिणाम स्वरूप जो ये आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस को जैसे कि राजपूताना, गुजरात, मालवा, इन सब एलिमेंट्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। कुछ फेमस पेंटर्स थे दासवंत, बसावंत, मुकुंद और केसव, ये सब उस टाइम के फेमस पेंटर्स थे। आप इनके नाम याद कर लो। सुपरविजन था पर्सियन मास्टर्स का, जैसे कि अब्दुल सामद और जो सैयद अली थे उन्होंने पर्सियन स्टाइल और जो मनुष्य था उसमें उन्होंने एक अलग चीज को उन्होंने क्या किया,
रिप्रेजेंट किया, मीन्स अलग तरीके से उसे दिखाया, और जो मनुस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन था वो एक हॉलमार्क था मुगल पेंटिंग का। Another fascinating aspect of cultural life in medieval India is visible in its Indo-Islamic architecture. It is characterized by the adaptation of Indian resources, expertise, motifs, and design to Persian styles. New features like the arc and the dome were combined with the use of Hindu motifs like bell, lotus, swastika, and kalash, water pot. The Qutub Minar, the Alai Darwaza, and various monuments of the Tughlaq period like the Tomb of Ghiyasuddin Tughlaq are fine examples of architecture during the Delhi Sultanate period. The monuments of the Mughal period reflect a deeper sense of fusion and assimilation of Indo-Islamic styles. For example, the monuments of Fatehpur Sikri like Panch Mahal Birbal's Palace and Ibadat Khan, as well as the tomb of Humayun in Delhi, Akbar's famous tomb at Sikandra, Itmadu Daula's tomb in Agra, and of course the Taj Mahal are outstanding examples of Mughal architecture. तो इसका एक अलग आश्चर्यजनक की बात है, जो कल्चरल लाइफ था मध्यकालीन भारत का वो भी विजिबल है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो हम लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो इंडियन रिसोर्सेज और जो एक्सपर्टाइज है, मोटिव से जो डिजाइन है वो पर्सनल स्टाइल्स में किस तरह से कैरेक्टराइज किया गया है। इसके नए नए फीचर्स थे, जैसे कि जो गुम्बज या फिर जो हम लोग देखते हैं वृत्तखंड जो थे उस टाइम के, उसमें हिंदू के सिंबल्स को ज्यादातर यूज किया गया, जैसे कि बेल का, कमल का, बेल मीन्स वो घंटा, स्वास्तिक चिन्ह, कलश, जिस पे अभी भी हम लोग कलश को जैसे यूज करते हैं पूजा के टाइम में, वाटर पॉट कलश को बोला जाता है। जो कुतुब मीनार या फिर जो अलाई दरवाजा है, या फिर तुगलक पीरियड के बहुत सारे टॉम है, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब फाइन एग्जांपल है आर्किटेक्चर का दिल्ली सल्तनत पीरियड का। और जो मॉन्यूमेंट्स है मुगल पीरियड का, वो एक अलग सेंस ऑफ फ्यूजन हम लोग को शो करता है कि इंडो इस्लामिक स्टाइल से किस प्रकार से इन मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स का दिया गया है, फतेहपुर सिकरी का, पंचमहल, बिरबल्स पैलेस, इबादत खान, और साथ में जो टॉम ऑफ हुमायूं हुमायूं दिल्ली में, वो अकबर का फेमस टॉम सिकंदरा में है, इत्माद-उद-दौला का भी टॉम आगरा में है, हम लोग देख सकते हैं। जो ताजमहल भी है वो सब बहुत ही ज्यादा एक आउटस्टैंडिंग लेवल का एक एग्जाम्पल है मुगल के आर्किटेक्चर का, क्योंकि वो किस प्रकार से किस हद तक वो अच्छे अ, कारीगरों द्वारा इन मॉन्यूमेंट्स को वो बनवाए। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कुतुब मीनार का, आप इसे देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। Music was also patronized by most medieval rulers in India. Indian system of vocal and instrumental musical interfaced with Arab, Iranian, and Central Asian traditions of music. New ragas came to be composed. The Bhakti and Sufi traditions also gave an impetus to new devotional style of music. The medieval period of Indian history, quite distinct in its characteristics of political, economic, and cultural life, was thus another important outstanding पीरियड आफ्टर द एंशियंट पीरियड। तो हम लोग देखते हैं कि जो म्यूजिक था उसका भी भारत के जो भी शासक थे उसके ऊपर गहरा प्रभाव था। मध्यकालीन भारत में इंडिया सिस्टम का जो वोकल और जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था वो भी, उसका भी इंटरफेरेंस हुआ अरब, ईरानियन और सेंट्रल एशिया के ट्रेडिशंस की वजह से। और और ये जो नए नए रागास को कंपोज किए गए, जो भक्ति और सूफी जो ट्रेडिशंस है उन्होंने भी नए डिवोशनल स्टाइल्स म्यूजिक को दिए। मेडिवल पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री का था वो कुछ अलग था, और कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका, जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल और जो कल्चरल लाइफ था उनके बीच की पे ये बेसिस था। और जो अनदर इम्पोर्टेंट आउटस्टैंडिंग पीरियड है वो था एंशियंट पीरियड। तो हम लोगों ने एंशियंट पीरियड, एंशियंट वर्ल्ड और मेडिवल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। नाउ बेस्ड ऑन योर इन टेक्स्ट नॉलेज, ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.2। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज, और यहाँ पे सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।